کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ اس وقت ہم سٹی مال کے سروور پریمیئر ہوٹل میں موجود ہیں اور آج یہاں ایک فنکشن جو کہ جموں اینڈ کشمیر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز پروسیسنگ اینڈ انٹیگریٹڈ کولڈ چین ایسوسیشن ہے، ان کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے ماجد وفائی، آج ان کا پریزیڈنٹ شپ کا آخری دن تھا اور ان کے جو نئے اب ساتھی ہیں وہ جو ہے بشیر احمد نائک صاحب، اب وہ جو ہے اس ایسوسیشن کو سنبھالیں گے، اس کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ یہ دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں سے جانتے ہیں کہ کولڈ چین ایسوسیشن جو یہ کولڈ ایٹماسفیئر سٹوریج جسے ہم کولڈ سٹوریج بھی کہتے ہیں، اس میں کیا مسائل ہے، یہ چیز جو ہے کشمیر کے گروورز کے لیے، کشمیر کے فروٹ وینڈرز کے لیے، فروٹ گروورز کے لیے، ویجیٹیبل گروورز کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ماجد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کافی لمبے وقت تک جو ہے آپ نے اس ایسوسیشن کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، کیا کچھ مسائل ہیں جو آپ کے ٹینیور میں بھی رہیں اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ مسئلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم کولڈ ایٹماسفیئر سٹوریج کی بات کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔ آج ہماری ایسوسیشن کا ایک امپورٹنٹ دن تھا جس میں ہمارے الیکشنز ہمارے ایسوسیشن کے ممبرس نے پرجوش طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے ہمارے بشیر صاحب کو انہوں نے فرام النور ایگری فریش کولڈ چین سے ان کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے منتخب کیا۔ تو اس کے لیے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اب اس ایسوسیشن کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ ایسوسیشن ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے۔ دیکھ لیجیے، ہم بیسیکلی بزنس مین ہیں، ہمارا کام بزنس کرنا ہے۔ ہمارا کام لیڈرشپ کا تب آتا ہے جب ایک سیکٹر کوئی بھی سگنیفیکنس اختیار کر پاتا ہے، اس کے بعد ایک اس کی نمائندگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس نمائندگی کا طریقہ بہت سارے طریقے ہیں۔ جب میں پریزیڈنٹ بن گیا تب میں افہام و تفہیم سے، جس کو ہم کنسنسس طریقے سے، میں تب کیونکہ اتنا سائز ہماری انڈسٹری کا نہیں تھا، اراؤنڈ 12-13 سٹوری تھے، تو تب مجھے چنا گیا 2017 میں۔ تب بشیر صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ بنے تھے، تو تب سے لے کے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ بہت سارے چیلنجز آئے۔ پہلے سیکٹر کا سائز بہت چھوٹا تھا، لوگوں کا رجحان یہاں کی طرف نہیں تھا، جو ہم کو رستے میں بھی ملتا تھا، جس کے پاس ریسورسز تھے ان کو ہم بولتے تھے کہ آپ آ جائیے ہمارے سیکٹر میں، اور یہ ایک پرومائزنگ سیکٹر ہے، آپ آ جائیے۔ اور یہ جو جرنی رہی ہے میری، ایک چیلنجنگ تھی، ایک میموریبل جرنی ہے اب میری لائف میں، کہ 7-8 سال میں اس کی سربراہی کرتا رہا۔ بہت سارے چیلنجز آئے اس میں، بینکنگ چیلنجز آئے، گورنمنٹ پالیسی چیلنجز آئے، امپورٹڈ فروٹ کا آیا، بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ ہم نے بہت کام کیا، تو جن کو ہم نے ہمیشہ، جب ہمارا ہمیشہ ہمارا یہی رہا تھا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تو ہمارا فوکس ہمیشہ یہی رہا تھا کہ ہم پالیسی انٹرونشن کریں۔ اوکے سر، ہم پالیسی انٹرونشن کریں، جس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اوکے سر، تو آج ہمارا یہ سارے ممبرس آئے ہیں، تو پھر وہ ساتھ تو جو چیز ہم کولڈ سٹوریج کی، جیسے آپ نے کہا کہ کہاں ایک زمانے میں 10 سے 12 یونٹ تھے، اور کہاں آج اگر ہم دیکھیں تو محض شوپین میں 100 ہیں، 86 فنکشنل ہے، 14 ہمارے اور کچھ 2-3 مہینے میں شوپین میں ہی وہ 12 کولڈ سٹوریج۔ تو اگر ان کا سائز آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل 4000 کروڑ کی انڈسٹری بنی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ لیکن کیپیسٹی اگر دیکھیں، کیا ہماری کولڈ سٹوریج میں، کولڈ ایٹماسفیئر سٹوریج میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ جب آپ کا ایونٹ بھی ہو رہا تھا، ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جس چیز کی طرف جو ہے ہمارا رجحان جو ہے وہ جاتا ہے، ہم پھر سارے لوگ اسی انڈسٹری کی طرف لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہیومن ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب بھی کسی انٹرپرینور کو لگتا ہے کہ یہ ایک پرومائزنگ سیکٹر ہے، تو وہ تو انٹرپرینور جمپ کرے گا ٹو گریب دا اپرچونٹی۔ سو وی آر ناٹ اگینسٹ دیٹ، بٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پریزنٹ دا پرفیکٹ، وی ہیو ٹو پریزنٹ دا کریکٹ امیج آف دا سیکٹر۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ہماری انڈسٹری میں، وہ بولے کہ ہم نے یہ رانگ ڈیسیژن کیوں لیا۔ ہر ایک سیکٹر کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ایک چڑھنے کا ٹائم ہے، جب وہ ایک گروتھ ہے، تو ادھر اگر ہم
पॉलिसीज़ को अपने पॉलिसीज़ को हम रिव्यू नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता तो एक गोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सकता है. तो हमारा लूप साइडेड डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे सेक्टर में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शोपियान और पुलवामा में ही सारे स्टोर हम डालें. आपको पता होना चाहिए कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, वहाँ पे तो ना होने के बराबर इस वक्त कोल्ड स्टोरेज है. हम ये कह रहे हैं कि ये सनत और बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है, बट हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमको एक प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए. टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी चेक करनी है हमको. आज की डेट में अगर 1 साल 6 महीने पहले हमारी टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी थी, आज की डेट में है कि नहीं है, ये देखना है. तो ये हम ये मतलब करेक्ट पिक्चर हम अपने लोगों तक एक नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे हैं कि क्या है करेक्ट पिक्चर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. तो फिर जब हमको ये क्वालिटी डेटा अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास, जब क्वालिटी डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी है जितनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है. हमारे पास जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट ऑफ शोपियान एंड पुलवामा है, वी हैव एक्सीडेड phenomenal exceeded our storage capacity. This is a fact, this is a truth. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एज पर द गवर्नमेंट डेटा 4.25 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं ट्विन डिस्ट्रिक्ट ऑफ शोपियान एंड पुलवामा. उसमें ए ग्रेड 40 to 50% भी अगर है तो आप देख लीजिए. सो वी आर सिटिंग अराउंड 4 लाख टन्स की स्पेस पे हम इस वक्त सिट कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो कि जो नया एंट्रेंट आ जाएगा तो खुदा ना खास्ता उसको मुश्किलात का सामना आ जाए, फाइनेंसेस उसको प्रॉपर नहीं होंगे. तो हमारा यही है जो आपने बोला बार बार देखने को मिला कि हम करेक्ट पिक्चर अपनी सेक्टर का आज की डेट में देना चाहते हैं. बिल्कुल. नाइक साहब, पहले तो बहुत मुबारकबाद, आज आपने जो है इस एसोसिएशन की बागडोर संभाली. लॉट ऑफ थैंक यू सर. एक जिम्मेदारी नाम आयद आ चुके हैं. बिल्कुल. हमने भाइयों की तरह 7 साल निकाले हैं आज तक. तो हमने यही देखा कि हम एक लेबर की तरह हमने काम किया है दिन रात इस सेक्टर को बचाने के लिए. कितनी दुश्वारियाँ बीच में आई है. हम रात के 11 बजे 12 बजे 3 बजे देख रहे हैं कि हमारे स्टोरों में माल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो हम उसमें इंशाल्लाह शान बशान अपने ग्रोवर्स हजरात से, अपने जो डीलर्स हजरात से, अपने कोल्ड स्टोर हजरात से मिल के चले कि इस किश्ती को हमें पार करना है और चलाना है. बिल्कुल. आज तक अल्लाह ताला का शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है, ये सेक्टर कामयाबी से चला. अलबत्ता आज के डेट में तो कुछ खदशात लग रहे हैं कि पिछले साल हमारे ग्रोवरों जो हमारे पास माल रखे हैं, हमारे स्टोरों में माल रखे, उन बेचारों को किराया का पैसा भी बराबर नहीं आया. क्यों नहीं आया? उसमें मेन कारण है जो हमारे मुल्क में, हमारे देश में बाहर से फ्रूट आ रहे हैं, उसमें ड्यूटी कम है तो हमारे ग्रोवरों को मार हो रहा है, वो बच नहीं पा रहे हैं. तो अगर हम इस साल की अक्टूबर की बात करें तो लगता है कि माल शायद कम है पूरी वैली में, तो शायद स्टोर नहीं भर पाएंगे. मगर एक ऐसी परेशानी हो गई ग्रोवरों को, उन्होंने मन बनाया है कि हम इस साल अपने माल को मंडियों तक पहुंचाएंगे. मगर बदकिस्मती से पता नहीं चला, अक्टूबर में, सितंबर से लेकर अक्टूबर में ही, साथ में ही सारा मार्केट डाउन हो गया. फिर वो माल सारा स्टोर में आ गया. तो मगर स्टोर रेट के हिसाब से अगर स्टोर देखें, क्योंकि पिछली बार भी जैसा आपने कहा कि 6-7 महीने कोल्ड स्टोर में जनाब 7 महीने नहीं 9 महीने हमने माल रखे और 9 महीने के बाद भी वो माल अच्छे तरीके से चले. तो मैं ग्रोवर्स हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अब वो दौर ख़त्म हो गया जब हम क्वांटिटी बनाते हैं. हम आज के डेट में क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है. हमें देश के बाहर मुल्कों के साथ हमारे माल को कंपटीशन है, तो उसके लिए हमें क्वालिटी बनानी है. क्वालिटी में हमें एक ही उम्मीद है, जब हम पेस्टिसाइड ठीक तरह से देंगे, सब कुछ ठीक तरह से देंगे, तो स्टोर मालिकान से भी गुजारिश है कि वो अपना माल अच्छी तरीके रखें जो काबिल कबूल है. और 6 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद उस ग्रोवर को वो पैसा वापस मिलना चाहे जो कि उसकी उम्मीद ही है. पिछले साल से कंबर टूट चुका है ग्रोवर हजरातों से, तो वो यही बता रहे हैं कि स्टोर एक्सेस. तो हम भी रो रहे हैं कि माल में रेटें कम नहीं लग रही है, न सीज़न में लग रही है, न हमारे कोल्ड स्टोर सीज़न में लग रही है. हम अर्जदार से, अपने गवर्नमेंट से, अपने सीएम साहब से, अपने जो इस वक्त हमारी इवेंट चल रही है, हमने इसी मकसद से ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारे ग्रोवर्स हजरात को कुछ न कुछ मिलना चाहिए. वो बेचारे रो रहे हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, मन से प्रोग्राम बनाया कि
सारी वादियों को पता लगना चाहिए। हमने शुरुआत की इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है, उस गवर्नमेंट को लेके चलेंगे सेंटर में, उनको बताएंगे कि हमारी ग्रोवरों को ये परेशानियां है। स्टोर होने के बाद इनको हाथ में कुछ नहीं आता है। आएंगे नायक साहब, एक चीज़ और, जब आप 5 महीने 6 महीने 10 महीने कोल्ड स्टोरेज में माल रखते हैं, खासतौर पे फ्रूट्स रखे जाते हैं, जब उनको फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो नॉर्मल ट्रक्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स चाहिए। तो क्या वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है तमाम उन लोगों के लिए जिनका माल जो है अवेलेबल? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फैसिलिटी रखी है, तो मगर वो फैसिलिटी हमें चंद दिनों या 2 महीने या 3 महीने यहाँ चलानी पड़ती है, तो वो ये गाड़ी बैठ के रहती हैं ताकि वो चल नहीं पा रही है। कुछ लोगों ने ली है जो कुछ इस सेक्टर में, तो लेने के बाद लगभग 3-4 महीने वो बैठ चुकी है। तो वो हमारी मुश्किलात होते हैं कि हमें टाइम पे ये गाड़ी नहीं मिलती है, मगर क्या करेंगे, हमारी मुश्किलात है। पिछले साल से पहले मान लो 2023 की बात हम करें, उसमें बहुत हमारे ग्रोवर हजरातों को मुश्किलात हुआ, हमारे स्टोर रूम को भी मुश्किलात हुआ कि हमें पैसा वापस नहीं आया क्योंकि रेट कम लगी है। 2022 तक जो हमारे स्टोरों में माल रखे हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से एक स्टोर वाले भी खुश हैं, एक हमारे ग्रोवर भी खुश हैं। हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, जिस मकसद के लिए हमने ये इवेंट किया है, एक प्रोग्राम किया है सिर्फ ग्रोवर हजरात के लिए, कि ये स्टोरेज का माल जब निकलेगा उस टाइम हमें रेट अच्छी उन ग्रोवरों को मिलनी चाहिए। अगर 9 महीने भी हम रखेंगे तो मार्केट आगे ठीक रहेगा, वो बर्दाश्त कर सकता है। हमारे स्टोरेज की जो रेंट है वो भी बर्दाश्त होता है, और उसके बाद ग्रोवर भी उससे दुगना पैसा कमाता है। क्या किसी किस्म की सब्सिडी या स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को या कोल्ड स्टोरेज ओनर? कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को आज तक जो सब्सिडी मिल रही है वो बनाने वाले को मिलती है। उसमें उन्होंने एक रखी है, सेंटर से 5 करोड़ आ रहे हैं और स्टेट से 7 कुछ आ रहे हैं, 5000 मीट्रिक टन के ऊपर। ओके, इस सब में एक और चीज़ जो तो आज के डेट में मुझे लग रहा है शायद किसकी वजह से हमारे स्टोर वाले ओनर वाले बेचारे जो 2000 से लटक के रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट भी नहीं अप्रूव हो रहे हैं, या फंड्स की कमी है, या कुछ उसमें लग रहा है कि स्टोर ज़्यादा बने। तो उसमें जो उनका वर्कर्स प्रोग्राम है शायद उससे ज़्यादा हमारे स्टोर की डिमांड आ रही है, तो वो पैसे देने में थोड़ा बहुत लेट हो रहे हैं। ग्रेडिंग फैसिलिटी, इस सब में एक चीज़ जो सामने आती है कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रेडिंग जो फैसिलिटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक्सपेंसिव है, और अगर है तो क्यों है? नहीं, शायद मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पैकर हजरात है, अब पैकिंग के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हर विलेज में, हर गांव में, हर जगह छोटी छोटी उसी वजह से, उसी डिमांड से पड़ी हुई है, न कि एस्टेट में बल्कि देहातों में पड़ी है। उसके लिए यही है कि ग्रोवर हजरातों को उसमें फ़ायदा मिलता है। अगर फ़ायदा नहीं होता है तो वो ग्रेड लाइन बैठी हुई है। मेरे आपसे आखिर में 2 छोटे सवाल। एक ये कि अगर हम देखें, हम गर्मियों के मौसम में सब्जियां जो है काफ़ी अच्छी तादाद में उगाते हैं, यहाँ काफ़ी एबंडेंस में सब्ज़ी हमें मौजूद रहती है, लेकिन जब विंटर आता है, सर्दियां आती हैं, तो सब्जियां जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या हम सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं ताकि हमारा जो विंटर है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए? जनाब, अगर देखोगे तो हम श्रीनगर से शुरू करें एंड तक, जहाँ तक हमारी बालाई इलाके हैं, तो यहाँ से शुरू होके जो नए सिरे से अब हाइडेंसी आई है, तो घर वालों ने अपने सहन में भी लगाना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर की बात ही नहीं है, अब सारा कश्मीर हॉर्टिकल्चर में आ चुका है। बिल्कुल। तो सब्जियों के हिसाब से सब्जियां अगर हम उगाते हैं, क्या हम वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं कर सकते? रख सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, मगर रखने वाले होने चाहिए। रख सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, मगर रखने वाले अगर होंगे और वो इतनी लैंड हो जाएगी, अलावा लैंड हमारे पास है, तो उस काबिल हम रख सकते हैं। मगर मुझे लग रहा है जहाँ तक धान का ज़मीन है, सब्ज़ी का ज़मीन है, सारा को सिर्फ
हमारे किसान भाइयों ने, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, तो हम सबों ने यही देखा कि हमारे पैसे अगर बनते हैं वो फ्रूट में बनते हैं। तो सारे लोग जो है वो शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए, हाँ, सारे के सारे लोग इसमें शिफ्ट हो गए। मेरा लास्ट सवाल नायक साहब, अब आप इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी लंबे वक्त से जब से एसोसिएशन बनी है आप इसके साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन अब आप जो है एक कमांडिंग पोजीशन में, अब आपके पास एक अथॉरिटी है, नया प्रेसिडेंट, नए सारे चैलेंजेस, कई सारी मुश्किलात, किस तरीके से उनको देखते हैं और कैसे उनको आगे आने वाले वक्त में फेस करें? हमने फैसला यही किया, शुरुआत आज के दिन से ही है कि हमने तय आपस में अपने बरादरी से, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन सारी बरादरी से यही फाइनल किया कि हम मिल के जो फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स के सारी वादी के मंडी एसोसिएशन चुने हुए सदर है उनको हमने यहाँ बुलाया। हमने यही वादा किया आपस में कि हम मिल के चलेंगे, जहाँ भी हमें परेशानियाँ हैं हम उसका हल मिल के निकालेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने ओके, शुक्रिया, थैंक्स। तो ये थे नायक साहब जो कि अब कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के जो हैं प्रेसिडेंट बन गए हैं, और आने वाले वक्त में जैसा इन्होंने कहा कि तमाम ग्रोवर्स को, जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं अक्रॉस कश्मीर, उनके साथ मिल के जो है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।